वर्ल्ड डे ऑफ सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क 2023 इंडिया ईवी सेमिनार 2023 का आयोजन आईकैट सेंटर मानेसर हरियाणा में किया गया, जहां पर विषय था कैन द ईवी सेक्टर बी इंडियन नेक्स्ट ग्रोथ इंजन। यहां पर एजेंडे के तहत इस पर विचार विमर्श और चर्चा की गई। देखिए, सेमिनार में कई गणमान्य अतिथिगण पहुंचे और उन्होंने इस विषय पर अपनी बातों को रखा। साथ ही यहाँ पे डेलीगेट्स के साथ भी चर्चाएं हुई और अपने अपने विषयों पर सभी ने अपने विचार ईवी के सेक्टर में रखे। देखिए हमारी रिपोर्ट। Today is also a very special occasion. Today is World Day for Safety and Health at Work, and it's a very important moment also for us, because if you see the whole on 1st May we will see the International Labour Day. So health and safety is a very important aspect where a lot of labor organizations, unions and important HR departments have fought including inclusiveness, that how workplace should not only be safe, should be healthy and should be sustainable as well. Cherish all these moments, and especially an engineer, for sure this is going to be your day and your time. Thank you so much. Sector to be a lead runner contributing to the domestic and global economy. Decent work needs to be ensured not just in the large enterprises but down to the supply chain. This is mainly on the controlling the supply chain. In the EV sector, let's decouple the EV in two important parts. One is the battery, that is the storage part, and second is the vehicle. The storage part is actually the entire energy part, which covers again one of the important aspect of today. It is the Engineering has always been the backbone of progress, but last couple of decades maybe the era of our software engineers, but EV brings immense opportunity for electrical engineers, mechanical engineers, and many other category of engineers. Things affordable, if we can make things easily usable by the customer, people are going to buy. So two-wheeler EV, for example, if it is affordable, if people can charge at home, therefore people are buying it easily and it's easily adaptable. And हम जब लाएंगे हम भी, जैसे आज भी IC इंजन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल में हम स्पेयर्स देते हैं, आगे चलते हुए भी आई थिंक हम लोगों को ये भरोसा है कि हाँ ये चलेगा, इतना साल चलेगा, जैसे आप चलाएंगे किलोमीटर चलाएंगे, उसके बाद आपको पार्ट्स मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम। Sir, second, India has a moment of Y2K for the automobile industry, and for that we need hordes of youngsters coming into this industry and being excited about this industry, and opportunities like this where we can send the message across to the youngsters that this is an industry of the future, this is a place, technology of the future. And this seminar is like, can the EV sector be India's next growth engine? The answer is yes. The reason being, if you look at the electric mobility journey, maybe like commencing from 2015 onwards, when the FAME 2 was launched, and subsequently we had FAME 1 was launched, and subsequently in 2019 we had FAME 2 program. So that at the national level, there is like FAME 1 and FAME 2, which initiated the initial impetus for mobility industry. At the sub-national level, states start releasing out the electric vehicle policy. So Delhi also is one state which had a comprehensive electric mobility policy, which was launched in August 2020. The solar panel also to generate the solar energy, and which can be used for electric vehicle recharging. But इसमें हो सकता है कि like typically if you see the generation time of the solar energy, it's in the daytime, and there could be need for to do the storage of those energy by means of like battery energy storage system. But like largely like what we have seen in Delhi is like we have some of the EV charging station where we have put up the solar panels which are generating solar energy, and it is being used for charging the electric vehicles. It makes more sense because when you talk about decarbonizing the transportation sector, sourcing the clean energy makes more sense for at least like fueling the electric vehicles. Jobs in the sector. These are jobs getting unlocked across the value chain, from raw material sourcing to transportation, manufacturing,
hardware, software, battery technology, charging infrastructure, sales, service, driving, recycling units, collection, discipline. Traditional auto industry has seen higher share of women in electrical equipment and components manufacturing. But we are also seeing women break barriers in the 21st century, and we are seeing them present on the system, technological competitiveness, which came again a couple of times in that, and DLI scheme, which can play a very important role in it. Financing EV, always one of the backbones of it. And then we need to be a global champion in the EV sector. So we need to discuss what all things to be done between industry, academia and government to अपना सारे ट्रायल्स करते हैं, लेकिन सरकार को कैसे पता चलेगा कि क्या ट्रायल हुआ? तो उसके लिए संस्थान जैसे आईपैक है और भी संस्थान है, ये लोग एक फिक्स्ड नंबर ऑफ टेस्ट्स हैं, रेगुलेशंस हैं, स्टैंडर्ड्स हैं जो सरकार ने ही बनाए हैं, उनके आधार पर हम लोग इनको टेस्ट करते हैं और उनके आधार पर हम लोग ये कहते हैं कि ओके, ये गाड़ी भारत में चलने के लिए सक्षम है, चाहे वो गर्मी होगी या सर्दी होगी या बारिश पड़ेगी या कोस्टल है या फिर कोई मिसयूज करेगा गाड़ी को, वो एक अलग एस्पेक्ट है। लेकिन स्टैंडर्ड्स जो है वो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए बनाए जाते हैं और स्टैंडर्ड्स बन जाते हैं। उसके बाद जब गाड़ी लॉन्च होती है तो सारे स्टैंडर्ड्स उस पर्टिकुलर गाड़ी के ऊपर चेक होते हैं, टेस्ट होते हैं। कुछ भी ओके नहीं है तो वो गाड़ी लॉन्च नहीं हो सकती है, और अगर सब कुछ ओके है तो वो गाड़ी लॉन्च हो सकती है। एक बार गाड़ी में आग लग जाती है तो उसको एनालाइज करना कि कहाँ से आग शुरू हुई होगी बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी बहुत सारे इंजीनियर्स ने इस पे काम किया है, बहुत सारे सरकार के इनिशिएटिव्स हैं जिस पे ये काम हुआ है और इसके आधार पर नए नए स्टैंडर्ड्स बन रहे हैं। और मेरे ख्याल से अगर आपने मुझे सुना हो तो मैंने यही कहा था कि जब एक डीजल या पेट्रोल की गाड़ी नहीं चलती है, कुछ प्रॉब्लम आती है, मान लीजिए उसकी कूलिंग में प्रॉब्लम आई, जो मैंने उदाहरण दिया था वो यही था कि मान लीजिए वो गर्म हो जाता है और जैसा सर ने बताया कि वो पानी डालने जाता है और पानी नहीं डाल पाता है क्योंकि उसमें कुछ है नहीं इस तरह का। लेकिन एक माइंडसेट है कि अगर गर्म हो भी जाएगा तो कम से कम आग नहीं लगेगी। आईसी इंजन का ये माइंडसेट है। कुछ भी ऐसा हो जाता है तो इतना नहीं होगा जितना हम ईवी में सोच रहे हैं या देख रहे हैं। तो ईवी में जो अनसेफ सिचुएशंस हैं वो थोड़ी कंपैरेटिव टू आईसी थोड़ी सी ज्यादा रहेंगी और इस पे सभी लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर। इसीलिए आपने सब्जेक्ट देखा होगा थर्मल मैनेजमेंट ऑफ ईवी। ईवी की बात हो चुकी, अब हम थर्मल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं क्योंकि वो एक विषय ऐसा है जिसमें सबको चर्चा करनी आवश्यक है। तो कोई भी जब नई चीज आती है तो थोड़ा सा समय हम सब लोग लेते हैं, सब लोग। हम आज बात कर रहे हैं तो ये भी एक नई चीज हो रही है क्योंकि हम ईवी की बात करने लगे, एक नई चीज है, तो इस वजह से कुछ प्रश्न और बन रहे हैं जो कि अच्छी बात है। और इसी चीज को मैं भी बोल रहा हूँ कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है थोड़े से ऊपर नीचे ऊंच नीच रहता है और उसके बाद हम सब लोग इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, रेगुलेट हो जाते हैं, कंट्रोल में आ जाते हैं। हम भी एज ए यूजर भी जागरूक हो जाते हैं, एज ए रेगुलेटर भी जागरूक हो जाते हैं, सरकार को भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। तो एक जर्नी होती है जो कि सभी लोग इसके थ्रू करते हैं। सेमिनार शुरू हुआ है और अदरवाइज भी हम लोग ये कह ही रहे हैं कि ईवी का रुझान ज्यादा होने वाला है और इसी में भारत को बहुत मेजर एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट की हो, चाहे वो सस्टेनेबिलिटी की हो, चाहे वो निवेश की हो। हर तरीके से इस अपॉर्चुनिटी को हम देख पा रहे हैं कि ये एक बेहतरीन मौका है हम सब के लिए ग्रो करने के लिए। और मैंने अपनी स्पीच में ये बात बोली भी थी कि अगले 8-10 साल जो हम सब लोगों के होने वाले हैं, ये मेरे ख्याल से एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा, एक बहुत बेहतरीन फेज होगा। Excellency for joining us morning today on this special occasion of World Day. Thank you, Ranjan sir, for always being supportive and sharing your experience in our platforms. And more than I wanted to state experience. So you please carry this with you. This is a congratulations from us. अकरम हक है और मैं द पॉलिसी टाइम्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स का डायरेक्टर जनरल हूँ।
और पॉलिसी टाइम्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री और आईकैट के साथ मिलके हम सीरीज़ ऑफ इस तरह से ईवी वेबिनार्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और इसका मुख्य लक्ष्य है वो है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो हमारे देश की वातावरण को प्रदूषण मुक्त करने के लिए, यानी क्लीन ट्रांसपोर्ट की जो सपना है हमारे प्रधानमंत्री जी के और पूरे देश के, कि किस तरह से हम पोल्यूशन को कम करें और एकदम सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल बनाएं एक तरह, और दूसरी तरह हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको बढ़ावा देने के लिए इस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो मूवमेंट शुरू किया है, ये उसी का एक पार्ट है। और इस प्रोग्राम के ज़रिए हम तमाम जो स्टेक होल्डर होते हैं, जैसे इंडस्ट्री के लोग, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लोग, स्किल जो सिखाते हैं बच्चों को, स्किलिंग डिपार्टमेंट्स को, जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जितने भी ड्राइवर्स होते हैं, जितने भी सर्विस सेंटर्स होते हैं, पूरे ऑटोमोबाइल यानी इसके फ्रेटर्निटी को हम बुला के उनको एडुकेट करते हैं, उनके बीच नेटवर्किंग कराते हैं कि किस तरह से एक दूसरे के साथ हम बिजनेस भी कर सकते हैं, एक अच्छा भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बना सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल का। और आने वाले एक डिकेड में यानी 10 साल या 20 साल के अंदर भारत को इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग का एक ग्लोबल हब और ग्लोबल चैंपियन बनाना चाहते हैं। तो ये उसी का एक पार्ट था।